ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଆଜିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 2 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ITF ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇଫେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ତ ତାର ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ୟୁନିୟନ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଉ ଆପ୍ ବେସ୍ଡ ଆଇଫେଟ୍ ୟୁନିୟନ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ 2 ଦିନ ଧରିକିରି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ବା ଆମ ଯେଉଁ ଆପ୍ ବେସ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ପଲିସି ଅଛି ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର 2 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ଆପଣ ଖାରବେଳ ହୋଟେଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି 25 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନେଇ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରେନିଂ କାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସୁଛି କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ନ ପାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପର ଚଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲେ, ଚକା ଖୋଲୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ପୋଛୁଥିଲେ, କାଚ ପୋଛୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ନିଜକୁ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦେଇକରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବଣାଇ, ଛତିଆ, କେଉଁଝର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଆଉ 3ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିକରି ସେଥିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆହୁରି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେଇକରି ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁଶଳୀ ଏକ ସ୍କିଲ୍ଡ ଜବ୍ ଏଥିରେ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସରକାରଙ୍କର କୁଶଳୀ ଆଉ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ଲାଇଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର PF ଅଛି, ESI ଅଛି, ଅଦର ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିକି ପୁରାପୁରି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। मैं हूँ एडवोकेट उदय कुमार अमोनकर। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, जिसको हम लोग आईफैट के नाम से पुकारते हैं, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये भुवनेश्वर में जो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर ट्रेनिंग का ड्राइवर और ड्राइवर लीडरों का हमने लिया है। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन लंदन ITF जिसको बोलते हैं, उनके सहकार्य से ये मीटिंग यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप हमने लिया है। इसके विषय 3 हैं। एक विषय है जो एग्रीगेटर गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में लाई थी, अभी उसको रिवाइज करके 2025 में भी मई महीने में नया आया है।
हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2020 वाला जो है आधा अधूरा इम्प्लीमेंट किया था, अभी उनको नया जो आया है उसको लेके लाना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये जो एग्रीगेटर गाइडलाइंस है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो है अभी रेट सरकार तय करेगी, न कि कंपनियाँ। और वो जो रेट तय करना है, जो सिटी टैक्सी का रेट रहेगा उसके आधार पर रेट तय होगा। मतलब अभी मेरे ख्याल से 30 रुपये के नीचे तो बिल्कुल रेट ड्राइवरों को हमारे मिलेगा नहीं। जो 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपये मिल रहा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है और ड्राइवर बहुत तकलीफ में है। दूसरा चीज़ इसमें इंश्योरेंस का आया है कि 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस देना है मालिकों को, कंपनियों को, और हर साल उसमें कम से कम 10% का बढ़ोतरी करना पड़ेगा। तो इस तरीके का अच्छा सुविधा इसमें लाने का बात हुआ है। और जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, कंपनियां कुछ भी मन से कर रही थी, अब उनको एक रेगुलेशन में आना पड़ेगा। कानून बना है, कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जो कानून में काम नहीं करेंगे वो बाहर निकल जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ड्राइवरों को मालूम होनी जरूरी है। और यहाँ पर जो लीडर्स आए हैं, ड्राइवर लीडर्स, उनको प्रशिक्षित करके हम लोग जनरल ड्राइवर में उनको छोड़ने वाले हैं कि जाओ अपने सारे भाई बहनों को बताओ कि आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नियम आए हैं। दूसरा चीज़ जो है वो सोशल सिक्योरिटी का बात है। सोशल सिक्योरिटी का कोड 2020 में बना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी उसका नियम भी बनता है। वो उसी में सेक्शन 141 के तहत हर राज्य में वेलफेयर बोर्ड इन प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए बनने हैं। इसमें क्या मिलेगा हमें? इसमें प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, इसमें ESIC का प्रावधान है, इसमें पेंशन का प्रावधान है, इसमें इंश्योरेंस, अलग से इंश्योरेंस का प्रावधान है। और उसके साथ साथ एजुकेशन, भले ड्राइवर एजुकेशन करना चाहिए या उनके बच्चे, उनको जो मदद मिलनी चाहिए वो है। हाउसिंग है, जैसे हमारे पास अभी लेडी ड्राइवर कम है, लेकिन आज नहीं तो वो लोग बढ़ेंगी क्योंकि ये फील्ड बढ़ रहा है। तो उनका भी मैटरनिटी लीव से लेके मिसकैरेज लीव वगैरह वगैरह वो सब कुछ प्रावधान उसमें आए। तो इसका मतलब ये है कि ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जब बनेगा उड़ीसा में, तो सारे जो ड्राइवर है, भले स्त्री हो पुरुष हो, सबको प्रोटेक्शन मिलने का काम कानून का होगा, सोशल सिक्योरिटी उनको मिलेगी। ये दूसरा विषय। और तीसरा विषय जो है वो विषय है कि यूनियन को और कैसे बढ़ाए, कैसे और लोगों को जो फील्ड में है उनको संगठन में लाया जाए, उनको यूनियनाइज किया जाए। जब यूनियनाइज होगा तो ताकत संगठनों की बढ़ेगी और ये एक दिन प्रेशर गुट की तरह काम करेगा। हमारे जो सवाल है उसको हल करने के लिए ये यूनियन से खड़ी होगी और सारे कामगार उनके साथ जो ड्राइवर खड़े होंगे। और इस तरह का पूरा ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग के बाद मुझे विश्वास है कि जो उड़ीसा मोटर चालक संघ है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर है, जिन्होंने यहाँ पर लीड लिया है इस प्रोग्राम को करने के लिए, उनके साथ और लोग भी जुड़ेंगे, और भी संगठन के लोग यहाँ पर हैं। तो उनको भी हमने कहा है कि आप भी यूनियन बनाओ और आगे चलो, क्योंकि यूनियन को कानूनन अधिकार है लड़ने के लिए अपने मजदूरों के साथ। एसोसिएशन में वो नहीं होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन में है, तो इसका फायदा ले। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। चलो जी, आप सब लोग चुप बैठे, उनको करनी। चलो ले लो, मैं भी घोषणा दूंगा। चालक एकता जिंदाबाद, चालक एकता जिंदाबाद, ITF जिंदाबाद, ITF जिंदाबाद, IFAC जिंदाबाद, IFAC जिंदाबाद, ओडिशा मोटर चालक संघ जिंदाबाद, ओडिशा मोटर चालक संघ जिंदाबाद, ड्राइवर पावर यूनियन पावर, यूनियन पावर ड्राइवर पावर। धन्यवाद। फोटो उठिए इसी तरह। मेन प्रॉब्लेम आपनकर कोनटा होची नमस्ते साथियों,
मैं आपका भाई एडवोकेट उदय कुमार अम्बोनकर, आईफैट का जनरल सेक्रेटरी। हम लोग आज भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पर 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, अपने उड़ीसा मोटर चालक संघ के संगठन के साथ जुड़े और संगठन के लोग भी, ड्राइवर भाई और यहाँ पर सब जमा है। और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर अभी नेत्रम ऑप्टिक्स की तरफ से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका आई टेस्टिंग का कैंप यहाँ पर रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि हम ड्राइवरों के लिए हमारी आँख यही इम्पोर्टेंट है। आँख नहीं रहेगी तो ड्राइविंग करना मुश्किल है। तो एक सोशल अवेयरनेस के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इस कैंप का आयोजन यहाँ पर किया है। इसी तरह का आयोजन हर शहर में जहाँ पर आईफैट और आईटेट जाएंगे वर्कशॉप के लिए, वहाँ पर अलग अलग कैंप्स हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जरूर सबको लाभ मिलेगा। और आईफैट अपने चालकों के लिए कटिबद्ध है। हम दुनिया चलाते हैं, वी मूव द वर्ल्ड, ये हमारा घोष वाक्य है। और इसीलिए ड्राइवर जिंदाबाद, ड्राइवर पावर, यूनियन पावर, यूनियन पावर।